So let's move ahead with the chapter that is the Earth. Now we'll be starting the Earth portion. So as we all know, Earth is a third planet from the Sun. First, second, third is your Earth. Okay, and your Earth is the fifth largest planet. Okay, in the solar system, and it is the fourth terrestrial planet also. Okay, and it is also known as your blue planet. See the planet, it looks like blue planet. The reason is why it looks like blue planet, because it is having a the percentage highest amount of percentage of water. Okay, so it is called, its Latin name is Terra. Its Latin name is Terra. Okay, it is spherical in shape. What, like it is circular in shape, but it is bulges from the sides. How, see, ये आपको सर्कल है, इसकी जो शेप है एग्जैक्टली हमने लास्ट ईयर 5th क्लास में पढ़ा था. हाउ इट्स शेप इज, इट शेप लुक्स लाइक एन ऑरेंज, कि ऐसे सर्कुलर है बट साइड से जो इसके जो ये साइड जिसके कॉर्नर्स हैं ये बाहर को निकले हुए हैं. इट बल्जेस आउट फ्रॉम द ईस्ट साइड, from the west side and from the east side. Okay, so जो है आपकी जो अर्थ है, it is bulges from the east and the west side. Okay, fine. Fine, it is like ये bulges जो it is from the side. Okay, and we have longest latitude is equator and the longest longitude is prime meridian, by which we can get the distance, proper distance. जो आपकी जो आपकी longitudes हैं वो आपको time में help करते हैं. जो आपके latitudes है, it helps you in the latitudes helps you in getting all the distances. Okay, so yes, so earth is blue in color and its shapes is somewhat like an orange, which is bulges from the sides, from the western side and from the eastern side. All right, so we have two major one is your longest longitude is a prime meridian, which is also known as Greenwich meridian, and second is your longest latitude, that is your equator. So equator, the latitudes help you in getting out your distance from the equator. तुम्हारा distance कितना है, and your longitudes helps you in getting the time, कि how much time has been passed and how times runs. Fine. Fine. And how it spins from west to east direction. Okay, and it spins on the tilted axis. हमको पता है जो हमारी earth है, it is not straight, it is like this, it is in the tilted motion. ठीक है, हमारी earth जो है ऐसे straight नहीं खड़ी है, हमारी earth कैसे है, tilted है. ठीक है, हमारी अर्थ कितने डिग्री पे टिल्टेड है, इट इज नॉट रिटन इन योर बुक, इट इज 23.5 डिग्री पे जो है हमारी अर्थ टिल्टेड है. ठीक है, जो स्पीड कितनी है हमारी अर्थ की स्पिनिंग की, इट इज 1600 किलोमीटर्स. कितनी है हमारी स्पीड अर्थ की स्पिन करने की, इट इज 1600 किलोमीटर्स. एंड हमारी अर्थ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाती है, इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स. ठीक है, इट टेक्स 365 days. फाइन, जो हमारी अर्थ है वो जो है कितना टाइम लेती है, 365 days and 6 hours. ठीक है, टू कंप्लीट इट्स 1 रेवोल्यूशन.
ठीक है, पूरा एक चक्कर लगाने में वो कितना टाइम लेती है अर्थ के आसपास, सॉरी सन के आसपास पूरा एक चक्कर लगाने में वो टाइम लेती है 365 डेज एंड 6 आवर्स। एंड आपके 4 साल के बाद आपका आता है लीप ईयर, मतलब 365 डेज 6 आवर्स प्लस 365 डेज प्लस 6 आवर्स, 365 days plus 6 hours and 365 days plus 6 hours. Okay, so 1 2 3 4 6 into 4 equals to 24. ठीक है, so it takes your 365 days plus 6 hours equals to 24 hours, and 24 hours equals to 1 day. So after 4 years you have a leap year, जो 1 day होता है वो आपका ऐड हो जाता है कहाँ पे, it adds in which, it adds in your February. फेब्रुवरी हमारा बेसिकली 28 डेज का होता है, फिर वो फेब्रुवरी में एक जो डे है वो ऐड हो जाता है एंड इट गिव्स 29 डेज। फाइन, सो आपके 365 से 366 डेज हो जाते हैं। फाइन, एंड जो हमारा जो एक रोटेशन है, अर्थ एक पूरा रोटेशन जो है अपने एक्सिस पे कंप्लीट करती है कितने टाइम में, 24 आवर्स में। ठीक है, और ये मूवमेंट क्या है, अफेक्ट करता है हमारा टेम्परेचर भी, और ये मूवमेंट हमारा अफेक्ट करता है सीजन्स भी। सी नाउ हाउ, सी यू कैन सी द 2 रिंग्स इन माय हैंड, राइट, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, सो हमारा जो इंडिया है इट लाइज इन दिस गोल्ड, मतलब ईस्टर्न साइड पे, एंड जो हमारा यूएसए इट लाइज इन द वेस्टर्न साइड। ठीक है, सो हमारी अर्थ जो है अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, ऐसे घूम नहीं रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। ठीक है, तो जो हमारी अर्थ है, जो हमारा सन है वो राइज करता है ईस्ट से, सपोजिटली दिस इज आवर सन, तो ये ऐसे करके राइज करेगा। ठीक है, एंड जो हमारा जो अर्थ है वो, जो हमारा इंडिया है वो ईस्ट में है, तो जैसे जैसे वो रोटेट करेगा अपनी एक्सिस पे, सन की जो लाइट पहले इंडिया पे पड़ेगी, गोल्ड रिंग पे पड़ेगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे आपका आएगा डे, और जो यहाँ पे जो है आपके सिल्वर में है आपका यूएसए, तो जब यहाँ पे यूएसए में आएगा तो इट विल बी योर डे, एंड इंडिया में क्या हो जाएगी, आपकी नाइट हो जाएगी। ठीक है, सो ईस्टर्न साइड पे आपका इंडिया है एंड ईस्टर्न साइड से आपका सन निकलता है, तो ईस्टर्न साइड पे जब इंडिया एंड सन हमारा निकलता है तो क्या होता है कि वो वहां पे आपकी पहले डे होगी, एंड जो वेस्टर्न साइड के जो जितने भी कंट्रीज होंगे वहां पे जो डे है इंडिया के बाद होगा। इज दैट क्लियर? फाइन, एंड आपके सीजन्स कैसे आते हैं, आई विल टेल यू। सपोजिटली आपका, ठीक है, आपका ये जो है, ठीक है, ये आपका है सन, ठीक है, ये है आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, दिस इज योर सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, दिस इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज योर सदर्न हेमिस्फीयर, ये आपका सन है। ठीक है, दिस इज योर सन। अब आपका समर्स कैसे आते हैं, जब आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट हो जाता है सन की तरफ, तो दिस पोर्शन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैव समर सीजन। ओके, और व्हेन योर अर्थ, व्हेन योर सन बिकम्स टू इक्वेटर, जो आपका सन है जो इक्वेटर पे आके शिफ्ट हो जाता है, देन वी हैव इक्विनॉक्स। ठीक है, और आप जिसको कहते हो ऑटम टाइप ऑफ सीजन, ठीक है, ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन्स। ठीक है, जब आपका सदर्न हेमिस्फीयर शिफ्ट हो जाता है अर्थ की तरफ से, टिल्ट हो जाता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में आपके समर्स होते हैं, एंड जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके हो जाते हैं विंटर्स। सो दिस इज हाउ योर विंटर्स एंड योर समर्स अकर्स। ठीक है, दिस इज हाउ योर सीजन्स अकर। ठीक है, so now what is the physical characteristics of the earth? So there are a lot of physical characteristics, that is the sun, the earth is the only planet in the solar system which is having the life. So in the solar system हमारी जो जहाँ पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, that is only your अर्थ। ठीक है, जो डिस्टेंस है सन का जो है और सन से जो अर्थ का है, ये बिल्कुल सुटेबल है। ठीक है, इट इज सुटेबल फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर, सो इट इज सुटेबल फॉर मेंटेनिंग टेम्परेचर इन द अर्थ। अगर अर्थ जो है बिल्कुल ही क्लोजली रहेगी सन से, तो जो है टेम्परेचर जो है सन में अर्थ में बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, मर जाएंगे ना हम लोग। अगर यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर होगा तो कैन वी सर्वाइव, तो जल जाएंगे। ठीक है, हम 40 डिग्री टेम्परेचर ही नहीं बेयर कर पाते गर्मियों का, तो हम कैन बी बेयर 100 डिग्री टेम्परेचर, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। सो इसलिए जो अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से, इट इज ओके, जिससे में हम अपनी जो है लाइफ है सिक्योर कर सकते हैं, हम लाइफ जो हम अपनी
जो है स्पेंड कर सकते हैं उस टेम्परेचर में, ठीक है। अगर हमारा प्लैनेट बहुत क्लोजर, जैसे हमारे पास क्लोजर होता है तो हमारे यहाँ पे ओशंस नहीं होते, ओशन जो होते हैं हमारे ड्राई हो जाते, सूख जाते ओशंस हमारे, ठीक है, ओशंस हमारे सूख जाते, हमारे जो है यहाँ पे प्लांट्स भी ना होते, प्लांट्स भी सूख जाते, ठीक है। और अगर हमारे जो है, अगर हम सन से बहुत दूर होते, जैसे जैसे हमारे आर्कटिक है ना, जैसे हमारे आर्कटिक एंटार्क्टिक सर्कल है, अगर हमारा सन, हम सन से बहुत दूर होते तो भी हम नहीं लाइफ स्पेंड कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जो ओशंस, वाटर बॉडीज फ्रोजन होती, ठीक है, वहां पे बर्फ रहती, 6 महीने बर्फ, 6 महीने धूप आती, तो देन ऑल्सो वी कैन नॉट स्पेंड लाइफ, है ना। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि where we have that kind of arctic and जहाँ पे we have lot of snow there we cannot have life. Why? Because वहाँ पे जो है, जो वहाँ पे ठंड बहुत होती है, वहाँ पे सिर्फ पेंगुइन्स या फिर साइंटिस्ट जाते हैं सिर्फ रिसर्च करने के लिए, ठीक है, फाइन। सो नाउ हाउ योर अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, जो आपको ये अर्थ है ये यूनिक प्लैनेट कैसे है, ठीक है, हाउ योर अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। सो हमारा अर्थ यूनिक प्लैनेट इसलिए है, क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे जो है लाइफ है, यहाँ पे आपको लाइफ देखने को मिलेगी, आपको वाटर बॉडीज, प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे आपको हर चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो है सन से बिल्कुल सही पोजीशन पे है, सो दैट कि हमें हीट भी मिले, हमें एनर्जी भी मिले, हमारा टेम्परेचर भी नॉर्मल हो, और हमारे जो वाटर बॉडीज है, हमारे जो बाकी जो वाइल्ड लाइफ है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। और जो हमारी जो अर्थ है सराउंडेड बाय वेरियस गैसेस, ठीक है, और हमारी अर्थ के ऊपर एक शील्ड है, दैट इज ओजोन लेयर, ठीक है, दिस लेयर, यहाँ पे आपकी अर्थ के ऊपर यहाँ पे एक ये लेयर है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज योर ओजोन लेयर, ठीक है, which protects the earth from the ultraviolet rays of the sun, ठीक है, जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से, ठीक है। सो दिस इज हाउ आवर अर्थ इज, so that is how our earth is very unique planet, okay। हमारी अर्थ यूनिक प्लैनेट कैसे है? because we have a ozone layer which helps the earth, ठीक है, which helps the earth in maintaining the temperature, and it protects the earth from the ultraviolet rays of the sun. So that's the reason our earth is very unique planet, fine। So here I'll stop, fine। Tomorrow we'll do moon, moon and the phases of the moon, and then by tomorrow we'll complete this chapter, okay। Thank you so much and have a nice day ahead.